Yes, very good morning all. Today I am going to discuss about the meaning of psychological research. What do you mean by psychological research? Psychological research क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. As you all know that psychological research belongs to only psychological variables. Means psychological research based on psychological variables. We study psychological variables with the help of some methods. Means we are investigating the psychological phenomena. We are exploring scientific phenomena with the help of psychological methods. Psychological variables like memory, learning, intelligence, motivations, emotions. There are many psychological variables. We have to also understand the meaning of research. What is the meaning of research? As I have already discussed with you, that research means we are searching something again and again. We are searching something again and again. हम किसी चीज को बार बार देखते हैं या खोजते हैं, वो क्या होता है? रिसर्च. रिसर्च का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट में वो सारी चीजें हैं ऑलरेडी, एनवायरमेंट में वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट वी आर सर्चिंग टू दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इन एनवायरमेंट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसर्च. री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स किसी चीज को देखना, खोजना. तो इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम खोजते हैं, क्योंकि वो पहले से ही है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? दोबारा से खोजते हैं. तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिसर्च. और साइकोलॉजिकल मीन्स जो सर्च, जो इन्वेस्टिगेशन, जो एक्सप्लोरेशन हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का कर रहे हैं. कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च. मीन्स वी आर एक्सप्लोरिंग the psychological variables with the help of some methods, or by methods हम किसी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. वो क्या होता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है. अंडरस्टूड? नाउ देयर आर certain objectives of psychological research. There are certain objectives. कुछ objectives भी हैं psychological research के. वो क्या है? जैसे based on the objective of psychology, there are 3 or 4 objectives of psychological research. कौन कौन से हैं वो? साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा है, वही ऑब्जेक्टिव्स साइकोलॉजिकल रिसर्च की. The same objectives are of psychological research. साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हमने इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करते हैं. We are, first objective of psychology is we are understanding the human behavior. We are understanding. Similarly, साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? We are understanding the psychological variables or understanding the behavior of the persons. Okay, so first objective will be the understanding of the behavior. Understanding of behaviors, हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझते हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग. सेकंड, explanation. We are explaining the particular psychological variables. We are explaining the particular behaviors. So second objective, explain. उसको describe करते हैं, उसको वर्णन करते हैं
कि कोई भी वेरिएबल्स जो है, कोई भी फिनोमिना है, उसका क्या लॉजिक्स है और क्या मीनिंग है, कहाँ किस चीज से रिलेट करता है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव विल बी एक्सप्लेनेशन. थर्ड, प्रिडिक्शन. Prediction. We are also predicting the behavior of the person. After gaining the thorough knowledge of a particular concept, we are predicting that he or she will do the same behavior or different. Or in another sense, I'm using the definitions of Caton's of personality, what a person will do. That is also some kind of prediction. Means what you are going to do in a particular situation. I am predicting your behaviors. If you are with your colleague or with your friends, the behavior which you show is different when you are alone. I am predicting your group behaviors on the basis of my observations, on the basis of my investigations. Okay, so आप किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च से, कि आप एक पर्टिकुलर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे. फ्यूचर भविष्यवाणी भी करते हैं हम साइकोलॉजिकल रिसर्च से कि यस, यू बिहेव इन ए ग्रुप डिफरेंटली एंड व्हेन यू आर अलोन यू बिहेव डिफरेंटली. जब आप अकेले होते हैं तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और जब आप ग्रुप के साथ हो तब आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिया, हमने देख लिया कि यस, योर पर्सनालिटी इज when you are with your friends, and your personality is different when you are alone. So there are this is the one of objectives of psychological research. Okay. And next objective क्या हो सकता है? निशा वर्मा, आपका माइक को अनम्यूट करो. Next objective of psychological research is to control the behavior, to control the characteristics of the person. We are also emphasizing on the laboratory work. We can control the behaviors in a lab setting. We can control, but we cannot control the behavior of the persons in external environment, which is natural. But we can control only the behavior in a lab setting. हम सिर्फ व्यक्ति का व्यवहार जो है लैब में हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको माप सकते हैं. ओके, so this is also an objective of psychological research. Based on the objective of psychology, there are 3 or 4 objectives of psychological research. We have understood that the psychological research is investigating the psychological variables, psychological phenomena, psychological event, psychological situation, mental process, human behavior. Whatever the psychological principle, psychological concept, the scientists are exploring. जो भी psychological phenomena है
वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं आपसे बात करूं मेथड्स की। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। हमारे पास कोई एक मेथड्स नहीं है साइकोलॉजिकल रिसर्च का, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च के मेथड्स हैं। व्हाट आर दोज मेथड्स? वो कौन कौन से मेथड्स? We can categorize these psychological methods in two ways. Broadly in two ways. हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? Some of the methods are belong to experimental in nature, or we can say that experimental research. Some of the methods are related to non-experimental in nature, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल रिसर्च। हमने कैटेगरी बना दी दो। वी हैव क्रिएटेड two broad category. One category is experimental research, second non-experimental research. First category में हमने क्या कहा? Experimental research. Experimental research means we are conducting some experiments. We are conducting some experiments. Now, what is the meaning of experiment? It is set and controlled condition. It is set and controlled condition in which the causal relationship has been established by the experimenter, or the causal relationship की बात करते हैं उसमें, या फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स की बात करते हैं। वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं? वी आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू नो द साइकोलॉजिकल फिनोमिना, टू एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स बाय using independent variables and dependent variables. We are controlling the dependent variable, and we are observing the effect of independent variable on dependent variables. This is all about experiment. Okay, experiments research is thoroughly based on experiment. Non-experimental research, where we are not conducting experiment. नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लैब सेटिंग नहीं होती। तो क्या होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? कोरिलेशनल रिसर्च इज आल्सो ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर्वे रिसर्च इज आल्सो ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑब्जर्वेशन रिसर्च is also a non-experimental research. Theoretical जो भी बात कर रहे हैं हम, theoretically जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता, कोई भी है, वो क्या होती है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हमने दो कैटेगरी बनाई है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड ऑन थोरोली experiment, whereas non-experimental research we are not conducting an experiment in that. ठीक है, अब मैंने लिखा है assumptions। कोई भी हम फिनोमेना को या कोई भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो हम we are assuming something, assumptions, rules, regulations, set of rules। तो हम कोई भी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारे सामने कुछ assumptions मान के चलते हैं। We are assuming yes, if this, that will happen, if that,
दिस, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं assumptions में, अगर ये है तो वो होगा, अगर वो है तो ये होगा। ओके, इफ यस देन दिस, इफ नो देन दिस, ठीक है। assumptions, वी आर अज्यूमिंग समथिंग। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में कुछ assumptions होती हैं, कुछ assumptions होती हैं, वो हम लेकर चलते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या कोई भी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे, मॉडल एंड थ्योरी। ये भी एक बेसिक से कंसेप्ट है साइकोलॉजी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी, क्या डिफरेंस है? अक्सर हम साइकोलॉजी में ये बात करते हैं बिहेवियरल मॉडल, साइकोएनालिटिकल मॉडल, अब दूसरी ओर हम करते हैं बिहेवियरल थ्योरीज, साइकोएनालिटिकल थ्योरीज। क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड थ्योरीज? एनीवन कोई बताना चाहे? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड थ्योरी? मॉडल और थ्योरी में कोई डिफरेंस है? क्योंकि अक्सर हम साइकोलॉजी में मॉडल की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। क्यों है दोनों अलग अलग? अब मैं कहूं थ्योरी दोनों के दोनों फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। मॉडल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट, थ्योरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट, बट डिफरेंस देखना है हमें। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है मॉडल और थ्योरी में? मॉडल रिप्रेजेंट फैक्ट्स, मॉडल रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड थ्योरी एक्सप्लेन फैक्ट्स। जब भी हम कोई बात करते हैं मॉडल और थ्योरीज की, हमें ये दो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इफ हम कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो किसी मॉडल को, अपना माइक अनम्यूट करें प्रीति। मॉडल और थ्योरी में हम डिफरेंस बात कर रहे हैं। मॉडल का मतलब क्या है? वी आर रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट इन ए ग्राफिकल वे। जब भी आप मॉडल देखोगे, जैसे आप मॉडल मेमोरी का मॉडल आपने बात की है, तो वो ग्राफिकली प्रेजेंट करेगा, ऐसे ग्राफिकली। सेंसरी मेमोरी, एसटीएम, एलटीएम, व्हाट इज दैट? इट मींस जो मेमोरी का मॉडल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट को। पहले ये बॉक्स बना दिया सेंसरी मेमोरी का, फिर ये एसटीएम और एलटीएम, ठीक है। तो क्या है, मॉडल ने जो भी फैक्ट थे वो रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफिकली किसी बॉक्स के माध्यम से या किसी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। लेकिन थ्योरी में हम होता ये चीजें नहीं करते। थ्योरी में क्या करते हैं? वी आर जस्ट एक्सप्लेनेशन, वी आर जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन, वी आर जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन। हम उसकी फैक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, वर्णन करते हैं फैक्ट का। यस, दिस इज द फैक्ट, बिकॉज ऑफ दिस दिस हैपेंड, इसकी वजह से ये हुआ। अब मैंने assumptions लिखा, ये लिखा, तो ये रिलेटेड है इसी से। मॉडल और थ्योरी में डिफरेंस समझ में आ गया? मॉडल जो होता है, मॉडल करता है फैक्ट को रिप्रेजेंट, थ्योरी करती है फैक्ट को एक्सप्लेन। ये डिफरेंस हुआ। अब जो मॉडल और थ्योरी है वो क्या होते हैं? दीज आर द बेस्ड ऑन सम assumptions, बेस्ड ऑन सम assumptions। all model, all theories are based on some assumptions। कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करते हैं, वो मानते हैं। यस, अगर हम बिहेवियरल मॉडल की बात करें या फिर साइकोएनालिटिकल थ्योरी की बात करें,
या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात करें, तो इन्होंने क्या किया सारा का सारा, या मेमोरी की मॉडल की बात करें, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अजम्पशन लेके चलते हैं कि हम इन्वायरमेंट से ऐसे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फिर ऐसे प्रोसेस करते हैं, फिर ऐसे वो एसटीएम में जाती है, फिर एलटीएम में जाती है, ठीक है। तो वैसे ही थ्योरी जो होती है, थ्योरी भी कुछ मानकर चलती है, चाहे वो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है या बिहेवियरल थ्योरीज है। साइकोएनालिटिकल थ्योरीज में आपने देखा कि अनकॉन्शियस मोटिवेशंस में फोकस रहता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस रहता है। तो जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं, किस मेथड से हम वो रिसर्च कर रहे हैं और कौन से मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, कि किस मॉडल के को हम लेके चल रहे हैं, किस थ्योरी को हम रीइन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या किसी थ्योरी को हम वैलिडेट कर रहे हैं, रीवैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमें अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ए साइकोलॉजिकल रिसर्च। कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, व्हाट मेथड्स वी आर अडॉप्टिंग टू कंडक्ट द रिसर्च। कौन सा मेथड्स हम उस रिसर्च को कंडक्ट करने में फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है। नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में बहुत सारे हैं, जो चाहे वो कोरिलेशनल मेथड है, चाहे वो सर्वे मेथड है, चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड है, चाहे कोई और मेथड्स है, केस स्टडी है, केस हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेथड्स हैं किसी भी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को या वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड थ्योरी। क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस इसलिए किया क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च जब हम बात करते हैं, वो साइकोलॉजिकल रिसर्च किसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलती है, किसी मेथड्स पर डिपेंड करती है, और वो हो सकता है हम किसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं या किसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, और जो मॉडल और थ्योरीज हैं वो किसी अजम्पशंस पर डिपेंड करती हैं। उनकी अजम्पशंस क्या है, वो क्या मानकर चलते हैं। जैसे बिहेवियरिस्ट क्या करते थे, उन्होंने कहा स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स होता है। बिहेवियरिस्ट ने ये कहा था ना, स्टिमुलस आता है, रिस्पॉन्स होता है, इन बिटवीन क्या होता है वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता कि बीच में क्या होता है। स्टिमुलस आया, हमने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। एसआर अप्रोच को लेकर चलते हैं बिहेवियरिस्ट, और जबकि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, नो, केवल स्टिमुलस आया रिस्पॉन्स नहीं होता, बल्कि उसके बीच में जो मेडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, बीच के जो वेरिएबल्स हैं जिसको बोलते हैं मेडिएटिंग वेरिएबल्स, ऑर्गेनिजम्स, वो का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि स्टिमुलस आया, ऑर्गेनिजम्स ने उसको परसीव किया, उसके मेंटल प्रोसेस ने समझा, अंडरस्टैंड किया, यस इस स्टिमुलस में तो मुझे ऐसा रिएक्शंस करना है। ओके, तो चाहे वो SOR अप्रोच हो, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच हो, या फिर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो, या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हो, या कॉग्निटिव थ्योरी हो, सभी को हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी अजम्पशंस लेकर चलती हैं, कुछ मानकर चलती हैं, और उसी तरीके से हम साइकोलॉजिकल रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो हमने वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड objectives, methods, and difference between model and theory. So this is all about the